Hi everyone, and you're welcome back to Ekagas. It's your story, yet another live session. Today we are going live with Harpuneet Kaur, and I'm just waiting for Harpuneet to join in. And today we are going to discuss about what feminism really means about. So finally we've got Harpuneet with us. So Harpuneet, hi. So like I was going through your profile, uh, so I got this one line, which was very attractive to me. वो line आपकी थी कि angry feminist. Yeah. So why are you so angry? So because I'm not ignorant, and I think if you are not ignorant, you have to be angry on so much. There's so much inequality and there's so much oppression. And when you know there's so much oppression, how can someone be not angry? So yeah. Of course. ओके सो मैं थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस है उनको आज के लाइव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि Yeah. आज आपको पता होगा हरपुनीत कि आज विमेंस इक्वालिटी डे है एंड उसी के साथ में क्या कहते हैं आप क्योंकि एक फेमिनिस्ट हैं जो कि आपका बायो हमें मिला है जो कि कहता है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमेंस इक्वालिटी एंड व्हाट इज फेमिनिज्म आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले राइट तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आई थिंक एक हमारे पास कमेंट आ भी चुका है कि जल्दी बताओ राइट Okay. तो जल्दी बताओ कि उस कमेंट से हम लोग जल्दी बताना शुरू करेंगे ओके सो सबसे पहले पुनीत देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस वन टर्म दैट इज फेमिनिज्म जिसके ऊपर बहुत से ट्रोल्स भी आते हैं आपने देखा होगा कि ये सूडो फेमिनिस्ट ये वो ये Yeah. सो व्हाट इज दिस राइट if you can please tell us what is feminism all about सबसे पहले हम इसी से start करते हैं Okay, feminism is about equality of all the genders, race, sexualities, socioeconomics. It's not about just women and men. There are so many other genders as well. It's not about men being attracted to women or women being attracted to men. There are so many other sexualities as well. So, we can say that it's just like misogynist idea that feminism is wrong because it is creating a problem in the society, and they consider it wrong because they think that women have started being oppressive to men. Like now men are being oppressed. But I was just going through my social media and just read there's some judge and justice. तो she said कि अभी ऐसा टाइम नहीं आया कि men को ऐसे being oppressed वाला बोलने की जरूरत नहीं है ऐसा भी टाइम नहीं आया so okay chill down अभी ऐसा नहीं आया so बिल्कुल but feminism is seriously concepted and misinformed as men's oppression. They just say कि हर चीज को they try to connect it with feminism. अगर किसी भी लड़की ने कुछ I'm not covering or justifying the crime. कुछ गलत किया है तो just they will connect it with feminism. Feminism does not justify crime. It's different thing, and feminism is all about we have to treat everyone equally, all the races or the genders or all the people from socioeconomics and all the sexualities. Yeah, so women equality is part of feminism. Feminism is a whole movement which involves everyone, men, women, and trans women, they are just women and men, and other sexualities. So yeah, so it is a part of it. okay so what I can understand from what you are explaining is कि फेमिनिज्म ये नहीं है कि हमें आदमियों को ऑप्रेस करना है राइट Yeah. इट इज Yeah, of बेसिकली course. इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बट क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो भी वर्ड होता है वो उस वर्ड को लिटरली ले लिया जाता है रादर देन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट राइट क्योंकि वो स्टार्ट कुछ फेमिनिन से होता है तो वो दे आर Yeah, I really don't know why there is so much mess
लाइक नाम है ना फेमिनिज्म, इट्स ओके अगर उसमें फेम आ रहा है आगे, अगर ओके इफ इवन इफ इट्स अबाउट लाइक वुमेन, तो क्या दिक्कत है, इट्स ओके ना, कोई तो Of लाइक course. अपलिफ्ट हो रहा है, कोई तो आगे बढ़ रहा है ना इससे. आई नो व्हाई देयर इज सो मच हॉचपॉच एंड की फेमिनिज्म है, इसके आगे फेम लिखा हुआ है. ओके नाउ दे हैव स्टार्टेड मेनिनिज्म, लाइक दे हैव गिवन इट अ मेन आगे. तो इन लोगों को ये दिक्कत है कि आगे फेम आ रहा है, मैन नहीं आ रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट कि अगर कोई मतलब किसी को राइट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे आपके राइट्स छीन रहा है. बिल्कुल. या Okay. So you got this one question. Are you picking random people or this is fixed person? No. Shruti.31. This is a fixed person and Harpuneet ही अभी हमारे साथ पूरे लाइव में रहेंगी. या Yeah. So हाँ, तो आप जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली जो वर्ड है उसको पकड़ा जाता है rather than अंडरस्टैंडिंग द थॉट बिहाइंड इट. सो फर्स्टली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने उसके पीछे का जो थॉट है, फेमिनिज्म वर्ड के पीछे का थॉट, वो आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी ये बात समझ में आ पाई है. राइट. तो हम जैसे कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो विमेन इक्वालिटी का मतलब क्या है, हम लोग क्या कहना चाहते हैं, मतलब किस सेंस में हम लोग इसको, मतलब हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाते हैं, फेमिनिज्म मूवमेंट को. Okay, so there's so many different definitions, and people change it according to their privilege, needs, and knowledge. Like if you ask a woman from like urban area, she will say, I want to wear this, I want to do this, I want to go out, I want to marry someone of my choice, or I want to like satisfy my sexual needs. And there's so much, okay? And if you go to rural area, they will say, we want to study, we want to go out, we want to like live life की अगर हमारा पति है तो I mean कि वो सपोर्ट करे, हेल्प करे. वेयर बिल्कुल. जो अभी अर्बन एरिया में है, फेमिनिज्म का ये चल रहा है, इट्स नॉट अ हेल्प, वो अपने घर का काम कर रहा है, ठीक है. तो वही कि एरिया का फर्क पड़ता है. अगर आप अर्बन एरिया में पूछोगे किसी से, तो दैट गर्ल विल से कि मुझे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीनी है, आई वांट टू गो आउट, अपनी मर्जी से Right. कभी भी सेफली Right. घर वापस आना. And if you ask a girl from rural area, she will just say, I want to study. So वो फर्क पड़ जाता है, privilege matter करता है कि from where you belong, how much like कितना आपके पास, कितनी freedom already, मतलब family support कितनी है आपके पास. If I talk about myself, I have my family support. Okay. I have chosen my subject, I have chosen my college, everything, ठीक है. But वही अगर कोई और लड़की है, तो she have to consider everything कि इसके parents कितना support कर रहे हैं, जो कि नहीं करते. बिल्कुल. So that's what कि women equality बहुत अलग अलग point of view से देखी जा सकती है. First, education is just like first level. No, not just first level. First, you have to fight for being in the world. Like, दुनिया में आना है तभी तो पढ़ोगे. अभी like ठीक है, अभी there are people कि नहीं, लड़कियां बराबर होती हैं, and they have started being okay with it कि चलो लड़की है तो चलेगा. But ये एक और point कि लड़की है तो चलेगा सिर्फ एक लड़की के लिए देखा जाता है. अगर वहीं दूसरी लड़की हो रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नॉट इवन लाइक मदर और फादर बट अदर फैमिली मेंबर्स, कोई ना कोई एक बंदा तो जरूर बोलेगा कि एक पहले तो थी, अब दूसरी क्यों है. बिल्कुल. एंड जस्ट चेक कि जो दो बड़ी बहनें होती है, उनका एक छोटा भाई जरूर होता है. I think this is जहाँ पे हाँ, एक भाई और एक बहन होती है, उनका कोई तीसरा बहन भाई शायद, मतलब होते हैं, लाइक देयर आर एक्सेप्शंस, बट कि ये भी चीज कंसीडर कि जहाँ पे एक बहन भाई है वहाँ पे चले. जहाँ पे दो भाई होते हैं, वहाँ पे तीसरी बहन शायद ही होती है.
बिल्कुल वो जिनको लड़कियां चाहिए होती हैं, लाइक जिनको लड़कियों से प्यार होता है कि वी वांट अ गर्ल, एंड बिल्कुल दैट वी वांट अ गर्ल इज टू, आई मीन, लिंक्ड विद कि लड़कियां अंडरस्टैंडिंग होती हैं, लड़कियां सर्व करती हैं, लड़कियां पहले दूसरों को ध्यान रखती हैं, अपना बाद में देखती हैं। दैट्स टू ऑपरेशन कि दे आर नॉट लाइक इंडिपेंडेंटली लड़कियां एज अ कि हमें लड़की चाहिए बिकॉज लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं। नो, दे वांट अ गर्ल बिकॉज शी विल टेक केयर एंड शी विल लाइक डू एवरीथिंग शी कैन। सो दैट्स अ बिल्कुल पॉइंट कि बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एंड अगर मैं बोलूँ मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और वुमेन इक्वालिटी क्या है, सो आई वुड जस्ट से कि एजुकेशन इज द मिनिमम। पढ़ना लिखना सबके लिए होना चाहिए, नो मैटर्स कौन सी जेंडर है, क्या है क्या नहीं। बिल्कुल एंड बट सिर्फ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, या कोई भी थ्योरम पढ़ के मैथ्स की या कॉमर्स पढ़ के साइंस पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि कोई इक्वालिटी है। बिकॉज एक लड़की पढ़ लिख कर डिग्री लेकर एडवांस डिप्लोमा एडवांस लाइक अपना मास्टर्स कर कर भी जब शादी हो रही है उसकी, तो वो अपने लाइक अपने ससुराल जाएगी, तो वहाँ पे उसको एज अ मेंबर नहीं माना जाता। लाइक जो ये बोलने वाली बात है, शी वोंट बी लाइक कंसीडर्ड एज कि कुछ डिसीजंस लेने हों और उसको इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल अगर हम बोल रहे हैं कि पढ़ लिख कर इक्वालिटी है, तो वो इक्वालिटी नहीं है। दिस जस्ट अ वन स्टेप टूवर्ड्स इक्वालिटी। लाइक द पर्सन हैज स्टार्टेड क्रॉलिंग, अभी उसने सिर्फ क्रॉल करना सीखा है। अगर वो पढ़ रहा है तो, पढ़ लिख के है तो, अगर कोई पढ़ रहा है, कोई लड़की पढ़ रही है, शी विल गेट मैरिड। डाउरी को कह देते हैं अब नहीं होता, अब नहीं होता। एंड व्हेन शी गेट्स मैरिड, तो ये बोला जाता है कि लड़की के लिए दिया जा रहा है, लड़की की लाइक खुशी के लिए, और उसकी लाइक उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट, अगर वो लड़की खुद अपने आप को नहीं इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर सकती, हैंडल कर सकती, तो उसकी शादी क्यों हो रही है? ठीक है। बिल्कुल और जिससे शादी हो रही है, अगर वो ही अपनी वाइफ के लिए सामान नहीं ला सकता, या उसके पेरेंट्स को ही अपनी बेटी के लिए सामान देना पड़े, तो लड़का ही तो शादी कर रहा है। और अगर दोनों ही अभी भी एक दूसरे के ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो शादी हो क्यों रही? सो दैट्स अ पॉइंट। तो लाइक यू वर टेलिंग मी कि लड़के एक आप जिनका एग्जांपल लेके आप बता रहे थे अबाउट कि वहां पे कुछ लड़ाई हुई एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर मदर्स माइंड राइट दैट वाज कि यू सेड कि लड़की ने जरूर कुछ किया होगा या सो राइट देन अगले दिन कुछ रिलेटिव्स से वो पंजाब से फरीदाबाद आए हैं टू सॉल्व दिस मैटर। And just want to tell you, there was no female. ओके It's about a girl. या And when they came to our home, everyone like सारे male थे. And I was fine तब तक कि चलो कोई बात नहीं, हो जाते हैं लड़ाई वगैरह। अभी मेरे को पता नहीं था, हो सकता है कि शायद हो भी सकती है लड़की की गलती। When I like saw that सब आदमी हमारे घर पे जब एंटर हुए, I was so fucked up and I was like, मम्मा कोई लड़की नहीं आई, कोई मतलब कोई फीमेल नहीं है। तो he was like कि it's okay, हम तो है ना, हम देख लेंगे। तो because she knows I will be so, I mean कि मेरी लड़ाई हो जाएगी, I will argue कि आप किसी औरत को क्यों नहीं लेके आए। She said stay out of this, I will tell you, फिर अपना सजेशन दियो, हम वैसे ही करेंगे, बट अभी बाहर बैठी रहे। तो उन्होंने मुझे बाहर बैठा दिया because she knows कि I will argue. That's what they like मेरे बारे में the angry feminist, because I react immediately कि ये गलत है। They like went back and I got to know that Didi went out for something. She didn't tell her husband and उनके हस्बैंड ने अब ये बोला है
कि अगर ये मेरे से पूछ के नहीं जा सकती तो आई डोंट वांट टू कीप हर दैट वर्ड कीप Okay. आई वाज लाइक कि तो जो आए थे उन्होंने क्या बोला, वो क्या बोल के आए, तो शी सेड कि ये बोलकर आए हैं कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती गलती लड़की से Okay. गलती हो जाती है। एंड उन्होंने लड़की को भी समझाया कि एक बार थोड़ा बता दिया करो या पूछ लिया करो। एंड आई वाज लाइक डोंट ever ask them to come back here. I don't want my family to get into this. और आप अपना अभी स्टेप बैक कर लो एंड आई विल टॉक टू दैट दीदी कि आपको जो करना है करो। इफ ही इज नॉट लाइक बीइंग सपोर्टर, छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है आपको रहने की। तो मैं दादी वाज सिटिंग बिसाइड मी एंड शी वाज लाइक छोड़ दो। मैंने कहा और क्या क्यों रहना किसी के साथ अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर हम इतना पढ़ लिख कर भी किसी से पूछ कर कुछ करना है तो इट्स लाइक किसी से परमिशन लेकर कुछ करना है तो दैट्स रॉन्ग। तो शी सेड कि इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा मुश्किल आप लोग ही बनाते हो। बिल्कुल। कि हम लोग ही मुश्किल बनाते हैं कि किसी का अगर डिवोर्स हो रहा है या फिर कोई लड़ाई होती है तो वी स्टार्ट जजिंग पीपल। हम लोग ही, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, इवन यू कैन कंसीडर मी एज वेल, मैं भी आती हूँ इसी सोसाइटी में। तो वी स्टार्ट जजिंग पीपल। Then I gave some examples कि उन दीदी का डिवोर्स हुआ है, वो कितने आराम से रह रही है वो from my family. I said she is happy, she is living her life. तो कहती बट हस्बैंड नहीं है ना। तो मैंने कहा जरूरी भी नहीं है हस्बैंड होना। Right. Absolutely तो, right. Because I am bisexual, तो I said ma न्यू। तो मेरी दादी ने मेरे से बोला तेरा पति ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं तो शादी नहीं करूंगी लड़के से। I will marry a girl अगर ऐसी होते हैं लड़के। तो शी वाज लाइक कि मैंने धीरे बोला बिकॉज माय डैडी डोंट नो कि ऐसा है कुछ, ठीक है। बाकी मेरी फैमिली में लाइक मम्मा देख रहे थे मेरे को कि मत बोल लेना कुछ। एंड शी वाज लाइक कि आई मीन इतना ज्यादा ऑप्रेसिव है, इतना ज्यादा इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया कि अब वुमेन थिंक कि दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, ऐसा ही होता है और ऐसा ही चलता रहेगा। एंड दिस इज बिकॉज वो जनरेशन गैप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कट करते हैं। बट ये सब बोलने के बाद माय दादी सेड कि अगर मेरी बेटियों के साथ ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सही से यही सुनना है मेरे को कि छोड़ना नहीं है किसी को अगर कोई ऐसा करे तो। सो दिस इज हाउ वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट कि बहुत नॉर्मल हो गया कि। और अगर यही चीज अगर लड़की अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारे तो दैट्स अ वायलेंस, दैट्स कि लड़की ने लड़की को थप्पड़ मार दिया हो। और अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को थप्पड़ मार रहा है तो इट्स लाइक चलता है, इट्स ओके, यू शुड बी लाइक कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा एडजस्ट करो। I don't think चलता है। I've seen it. It's not just we have read it कि ऐसा होता है या फिर मैंने कोई कोटेशन पढ़ा हो, मैंने खुद देखा है ये सब चीजें। एंड कि ये सब होने के बाद आई टोल्ड माई लाइक डैड कि ऐसा हुआ, ठीक है। एंड आई सेड अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो डोंट एक्सपेक्ट मैं उसके साथ रहूंगी, ऐसा कभी हुआ तो आई विल इमीडिएटली लीव दैट पर्सन एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू टू सपोर्ट मी बिफोर टेलिंग मी कि आई मीन कि एडजस्ट करना चाहिए या फिर हो जाता है एक बार एंड गेट आउट। बिकॉज आई हैव बीन लाइक मैं इतना पढ़ लिख कर किसी से थप्पड़ या किसी सुनने के लिए नहीं जा रही। आई नो अबाउट माई सेल्फ कि मैं किसी को जबरदस्ती फालतू में थप्पड़ नहीं मारने वाली, ठीक है। तो व्हाई वुड आई, गलतियां सबसे होती है, गुस्सा सबको आता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम लोग लाइक फिजिकल हो जाओ और मारने लग जाओ एक दूसरे को। सो दैट्स व्हाट कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। सो फॉर मी एजुकेशन इज जस्ट मिनिमम, लाइक बहुत ही कम। अभी क्रॉलिंग करना सीखा है किसी ने, बहुत कुछ है, भी चलना है, भागना है, बहुत कुछ होता है। एंड देन दैट कि अगर कोई वुमेन अपनी सेक्सुअलिटी या अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस अगर खुल के बोल रही है कि हाँ ऐसे कैसे बोल दिया, फिर कैसे अगर कोई लड़की इक्वल है, अगर वो अपनी
नीड्स को, अपनी अपनी जो पसंद है वो नहीं बोल पा रही. इट्स जस्ट लाइक कि ठीक है तुम इक्वल हो, बट तुम सेटिस्फाई कैसे होगे, तुम्हें तुम्हें किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा या तुम्हारी नीड्स के, तुम वो मत बोलो. जस्ट बी अ सेक्स टॉय फॉर अ मैन कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, बट जस्ट कीप योर माउथ शट इफ यू हैव एनी नीड्स और डिमांड्स कि ऐसा होना चाहिए. यू कैन सी स्वरा भास्कर का वो मूवी और सीरीज आया था कुछ, कितना क्रिटिसिज्म किया गया है उसको, एंड दैट दिस इज नॉट फेमिनिज्म, दिस इज फेमिनिज्म. फिर वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर्स की फोटो लगा देते हैं, दिस इज फेमिनिज्म, एंड वो लड़कियां लगा देते हैं कि वो बोल रही है या फिर उसने ड्रेस पहनी हुई है कि दिस इज नॉट फेमिनिज्म. ओके. ठीक है, एंड दिस इज रॉन्ग. फेमिनिज्म इज जस्ट लाइक कि इवन इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट थिंग, अभी आई लव टू वियर लाइक सूट्स और आई लव टू वियर जीन्स. अभी कोई लड़की आके बोले आई लव टू वियर स्कर्ट्स, तो आई विल से ओके इट्स योर चॉइस, दैट्स फेमिनिज्म. अभी मैं उसको नहीं समझाने बैठूंगी कि नहीं मेरे को तो जीन्स पहनना पसंद है, मुझे सूट पहनना पसंद है, तो तू भी जीन्स या सूट पहन. एंड सेम विद हिजाब और बुरखा और लाइक सूट. लाइक आई वियर दैट, मैं जो सूट पहनूंगी वो डिफरेंट हो जाते हैं, और जो दूसरी लड़कियां खुद पहनना चाहती है वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो आई वोंट आस्क कि जबरदस्ती का कि तेरे को ऑप्रेस किया जा रहा है. अगर उसकी चॉइस है वो कुछ भी पहने. सेम विद गाइस, पिंक शर्ट पहनी है, फ्लावर्स बने हुए हैं, वो क्यों पहना है उसने, वो क्यों पहना है. अगर कोई मेकअप वीडियो डाल रहा है, या मेकअप वीडियो डाल रहा है लड़का, हाँ तूने मेकअप वीडियो, हाँ लाइक कितना गे है, ये है वो, ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो क्रिएट करते हैं, कर रखे हैं कि वुमेन शुड डू दिस, मैन शुड डू दिस. फेमिनिज्म कहीं ना कहीं उस गैप को खत्म करता है, स्टीरियोटाइप्स खत्म करता है, जेंडर रोल्स खत्म. मतलब इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही आपको दूं, लाइक यू नो आई ऑलवेज गिव दिस वन एग्जांपल that as soon as I say the color blue, okay, so if I say the color blue, so the first thing that pops up in your mind is a male, and if I say the color pink, the first thing pops up in your mind is a girl. Now if anybody in this world can please you know come and tell me who has decided कि ये color ही होगा. I really don't know कि why, because I have seen so many men in pink and they look so cute यार. मतलब I first see when I like see a man in pink, just इसकी अच्छा लग रहा है. I've complimented so many guys कि तूने आज पिंक पहना था ना, तेरे पे बहुत अच्छा लगा. And I've posted it कि अगर कोई लड़का पिंक कलर की शर्ट में है या फ्लोरल में है, तो just mind your business, either compliment or just fuck off. जाकर बताऊं मत उसको कि लड़कों का कलर कौन सा होता है और लड़कियों का कलर कौन सा होता है. नहीं मतलब द पॉइंट इज के चलो मतलब जेंडर में तो हम लोगों ने कर ही रखा है. कलर्स कब से मतलब जेंडर बायस्ड होने लगे. या एंड आई गेस ये हम बच्चों के पैदा होने से ही पहले ही डिसाइड कर लेते हैं. अभी यू कैन सी दैट बेबी शॉवर में कि जेंडर रिवील करने वाला कुछ कल्चर है, लाइक साइड बाय साइड यू नो वो एकदम पॉप अप करेंगे एक बैलून, उसमें से ब्लू निकलेगा या ब्लू निकलेगा. सो अभी तो वो पैदा भी नहीं हुआ, या हुई तो आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि वो मैन है या वुमेन है. अभी क्या पता उसको बड़े हो कि उसकी क्या प्रेफरेंस है. वेट करो, लेट हिम और लेट हर डिसाइड. दिस इज अ वेरी यू नो वेरी टू द पॉइंट थिंग that people don't even you know consider right now. Yeah, so this is कि पहले stereotypes, अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब ये लड़की ही बने रहेगा या लड़का ही बने रहेगा. एंड दैट कलर्स बताना कि ये पिंक लड़की का कलर है. एंड फिर कि जो लड़की के टॉयज आएंगे उनमें फर्क होता है. लड़की को किचन सेट दिया जाता है और लाइक कि वो there is this one comment that I want to read out to you and I want you to also read it out. भाई साहब कलर ही नहीं, इस देश के अंदर खजूर को मुसलमान और नारियल को हिंदू बना दिया. So you know you are absolutely right. Bhaktonil, I'm sorry if I'm not pronouncing your name right. Okay. Yeah, so we can continue with the conversation. Yeah, so
कि लड़कियों के टॉयज अलग होते हैं, लड़कों के टॉयज अलग होते हैं। तो हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं, आगे आगे हम लोग ही प्रमोट कर रहे हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि इफ वी नीड दिस सर्कल टू एंड, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फर्स्ट। हम नहीं निकले तो ये घूमता ही रहेगा और आगे वाली जनरेशन्स भी यहीं फंसी रहेंगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा शांत रह के भी समझा सकते हैं। अगर शांत रह के समझ रहा होता कोई तो अभी तक बहुत कुछ सॉल्व हो चुका होता। नहीं समझ रहे शांत होके। अर्पुनीत को अपने नाम के आगे एंग्री ना लगाना पड़ता, यू नो, शी वुड नॉट हैव सेड एंग्री फेमिनिस्ट, शी वुड हैव, यू नो, इनफैक्ट फेमिनिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। या कभी तो भी ये चीज मतलब एक मूवमेंट इसमें I just want to, you know, address Kashish. You are absolutely right. She has also, you know, given a very good point कि लोगों ने even music genres को भी वो बना दिया कि, you know, ये girly है, you know, you're listening to Justin Bieber, you're listening to Taylor Swift, Hannah Montana, you know, Miley Cyrus, you know, this is girly. And, you know, on the other hand, if you are listening to Metallica or you're listening to, you know, the music, the rock pop music, so you know, you're the guy. So I just wanted to address her. So हम लोग आगे इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क द ऑडियंस, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। या इट वाज फनी। सो आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना आप लोग हमें क्वेश्चन सेक्शन के अंदर भी कोई भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमारे को भेज सकते हैं। हे श्रुति, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। सो my next question to you is every woman equal to each other? See, there is so much, like I said, कि बहुत अलग अलग point of views होते हैं सबके। We are equal in terms of rights and right now अभी ये नहीं बोल सकते कि हम सब equal हो चुके हैं, बहुत need है अब। like there is like एरिया जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ भी नहीं रही एंड देयर इज एरिया जहाँ पे लड़कियाँ इस चीज के लिए लड़ रही हैं कि उनको शॉर्ट्स पहननी है एंड पीपल आर जजिंग देम। ठीक है, तो वी नीड टू बी इक्वल। वी हैव लाइक गैप बिटवीन अस बिकॉज ऑफ एरिया। कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अलग लेवल पे आगे जा रही है और कहीं ना कहीं बहुत स्लो है। कहीं ना कहीं गर्ल्स आर फाइटिंग कि मेरे को आगे पढ़ने दो, मेरी शादी नहीं। आई हैव सीन सो मेनी, मेरे साथ में ही पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियों की शादी हो गई थी हम जब अभी स्कूल में थे। तो मैंने उनसे So you are actually talking about child marriage. Is that what you are telling? Child marriage. Okay, I have no clue in, you know, in the urban areas. I have no clue about this thing. I live in Faridabad. It's like urban area. Yeah, it's an urban area. I've been there. Many people from our team are from there. So I mean कि child marriage है वो. So I went to her and I said, are you really interested in like शादी करनी है तेरे को अभी? इतना क्या प्रॉब्लम है? Get a boyfriend अगर इतना जल्दी है तो। रिलेशनशिप में आ जा, अगर मतलब फंसना ही है, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में तो बॉयफ्रेंड बना ले। व्हाई डू यू वांट टू बी लाइक मैरिड? कि मैरिज बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। एंड शी सेड आई कांट डू एनीथिंग मैरिज। सो आई सेड फाइट विद देम। तो उसका था कि इफ आई स्टार्ट फाइटिंग विद देम तो मेरा लाइक मेरा वो पे कौन करेगा, मेरी जो लाइक लिविंग्स है वो कौन भरेगा? बट विल आई डू, कहाँ जाऊंगी मैं? दे विल जस्ट से कि घर से निकल जा। तो इसे ट्राई एक्सप्लेनिंग देम, कहती उससे साफ उसका था कि नहीं कर सकती। आई टेल दैट देयर इज अ गर्ल she got pregnant. She was just I guess just turned 18 or she was 17 abhi. Okay, yeah. She got married, she got pregnant and miscarriage हो गया because of course health issues matter करते हैं कि किसकी health कैसे है. Right. And she was too depressed for like more than 2 years. Abhi I don't know, I'm not in like
मतलब कनेक्टेड नहीं हूँ मैं उस बंदी से. शी वॉज लाइक वन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माई म्यूचुअल्स. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. ये सब कहानियां नहीं है कि जो हम सुनते हैं कि ऐसा होता है वैसा. आई हैव सीन इट इन रियल. चाइल्ड मैरिज देखा है मैंने. एंड मैंने ये भी सुना है कि लड़की ज्यादा कमाने लग जाएगी तो वो डोमिनेंट हो जाएगी और ये फैमिली के लिए बहुत खराब होगा. वन ऑफ माई, आई एम जस्ट लाइक, आई वांट, नहीं बोलूंगी, मेरी बात हो रही थी. वी वर डिस्कसिंग कि उसकी मम्मा जो है शी इज अर्निंग मोर देन हिज फादर. तो ही सेड कि बहुत रूडली बोला उसने कि बहुत बोलने लग गई है मम्मा मेरी. तो मैंने कहा आर यू टॉकिंग अबाउट, आर यू सीरियसली टॉकिंग अबाउट योर मदर, कि बहुत बोलने लग गई वाली वर्डिंग्स के साथ. तो ही सेड कि कमाने लग जाती हैं औरतें तो ज्यादा बनने लग जाती हैं. आई वाज ओके, बाय, टेक केयर, स्टे अवे. तो दिस इज व्हाट की बहुत कुछ लाइक वी आर नॉट इक्वल. अभी तो कहीं ना कहीं गैप है हम लोगों के बीच में. लाइक वी नीड टू बी इक्वल. हर और लाइक हर लड़की, हर लड़के, हर जेंडर, हर सेक्सुअलिटी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, पर हो नहीं रहा. ग्राउंड रियलिटी पे बहुत कुछ डिफरेंट है. एंड दिस इज लाइक सिस्टमैटिकली इसको पूरा डिजाइन कर दिया गया है कि अगर हमारी लड़कियों के बीच में ही ऐसी मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर दिए गए कि हम लोग खुद को ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. लाइक दिस इज हाउ अ वुमन शुड बी एंड दिस इज हाउ अ वुमन शुड नॉट बी. मूवीज में दिखाया जाता है कि लाइक वो मूवी जो थी कॉकटेल, उसमें दिखाया गया कि जो मॉडर्न है लड़की वो अच्छी नहीं है, उसको पसंद नहीं कर रहा, बट जो बहुत ही सीधी है उसको पसंद कर रहा है. सो बहुत सिस्टमैटिकली हम लोगों के बीच में मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशंस क्रिएट कर दिए गए कि तुम लोग आपस में भी मत करना एक दूसरे को सपोर्ट. एंड बाहर से तो जो मिल रहा था वो तो है ही. इनइक्वालिटी जो आ रही थी, जो जजमेंट्स आ रही थी. I mean, to be very frank and honest with you, I was, expecting a very simple talk, I would say, but this is the heartbreaking and ground reality. Yeah. जिससे आपने आई थिंक मतलब मुझे, हमारी ऑडियंस को ही नहीं बल्कि मुझे भी आपने मतलब ऐसी चीजों से मिलवाया. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे ऑफिस में भी जब कभी इस बारे में बात होती है, आई एम लाइक आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, I don't really care about these things, right? Yeah. But That's when called privilege. I'm sorry, no, I'm not, privileged, I would say. No, but it's like gender yeah. privilege. What are you saying? Gender privilege. Okay, yeah, maybe, right. हाँ. So no, actually मेरे पेरेंट्स ने कभी इतना फर्क किया ही नहीं, मतलब मेरे में और मेरी सिस्टर में. Okay, so मतलब हमने कभी इन चीजों में ध्यान नहीं दिया इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता. लेट्स स्टिक टू द टॉपिक. एंड व्हाइल स्टिकिंग टू द टॉपिक, so what I was trying to tell you is this is the ground reality, and whenever I get to know about these things, I certainly feel in 21st century we are actually stuck with such idiotic acts. Okay, so what I was trying to tell you is कि मैंने कभी केयर क्यों नहीं किया है, मुझे पता क्यों नहीं था, because for me it is unimaginable to get to know कि child marriage हो रहा है, and you are telling me this thing कि अभी अभी हुआ. It is what I believe कि इतना 5 साल पहले हुआ होगा या maximum. No, 3 or 4 years, yeah. 3 or 4 years. Now you are telling me कि 3-4 years back, while I was in college technically, I am getting to know कि child marriage हो रहा है. एंड अभी लाइक एक और फ्रेंड है, उसका भी शादी हुआ. तो बस जिसकी एक बार, मतलब मेरी फ्रेंड नहीं थी, मेरी म्यूचुअल्स की फ्रेंड है, हम म्यूचुअल्स हैं. तो इसे एक बार प्लीज पूछ ले उससे कि इफ शी रियली वांट्स टू. अगर वांट्स टू वाली बात है तो वही तो फेमिनिज्म का पॉइंट है कि अगर कोई करना चाहता है तो करने दो. तो इट्स ओके. अगर उसको शादी करनी है और उसको होता है, बहुत लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज, ओपिनियंस होते हैं कि मुझे करनी है शादी, तो इट्स ओके, कर लो. बिकॉज अभी तो हम अडल्ट हो गए, मतलब लाइक 18+ हो गए थे, ठीक है. अब शी कैन मेक हर ओन चॉइसेस. बट फिर व्हेन आई गॉट टू नो कि नहीं, शी इज टू डूइंग दिस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, तो फिर वही बात आ जाती है. एंड
ऑल्सो कि फिर पॉइंट आ जाता है कि अगर मैं बोलूँ तो वो लोग बोलते हैं कि तू कौन है. एंड ऑल्सो कि if you like go to that person जिसकी शादी हो रही है जिस लड़की की, and you say I am ready to take legal actions, just don't step back. सच बोलना कि तुझे नहीं करनी है. and she will say कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं लीगल एक्शंस नहीं ले सकती बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स. फिर वो जो पेरेंट्स है, पढ़ाया है लिखाया है, वो बातें दिस इज रॉन्ग. यू कांट सपोर्ट योर पेरेंट्स इफ दे आर रॉन्ग. जो गलत है वो गलत है, इवन इफ दे आर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी है. आई मीन जो आई थिंक के पेरेंट्स को हमें पढ़ाना लिखाना इज नॉट कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं. ओके, इट इज देयर ड्यूटी दैट दे आर दे आर डूइंग इट. दिस इज द बेसिक दैट यू हैव टू डू इट. आप ये नहीं कह सकते आपने मेरे पे एहसान करा है मुझे पैदा करके. आई नेवर आस्क्ड यू मत पैदा करो. I have been experienced regarding this. Once my mom said तो पैदा कर, मतलब पैदा हम तुझे पढ़ा रहे हैं ये वो, तो इसे एहसान क्या था, पैदा ही मत करते, पढ़ाना भी नहीं पड़ता. तो she was like कि तेरे से कोई बहस नहीं कर सकता. सॉरी नहीं, बहस की बात ही नहीं. It's like we never ask you to make us. I never asked my parents please make me and send me to XYZ school. It was your choice. You wanted to have a family. It was your choice. You made your choice. I'm making mine. It's simple as that. And they will make so many like expectations, imaginary expectations कि हम पढ़ा रहे हैं तो तू टॉपर भी बन जाए. अरे जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा था, जिसको पता भी नहीं था कि आप उसको स्कूल में डाल रहे हो, अब आप उसे ये भी बोल रहे हो कि तू टॉपर भी बन. सो दिस इज रॉन्ग. ये पेरेंट्स की तरफ से बहुत गलत है. एंड मतलब बहुत इसको बहुत सिस्टमैटिकली इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि इफ यू लाइक अगर आप किसी को बोलोगे ना कि ये गलत है तो दे विल से कि तू बहुत ज़्यादा बोलने लग गई है, तूने ये सब कहाँ से सीखा, तू ज़्यादा मॉडर्न हो गई है. एंड आई विल शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट हैपेंड विद मी. मेरी फैमिली में तो इतना हिम्मत नहीं है किसी का कोई ऐसे बोले, बट देयर वर सम रिलेटिव्स. She was following me on Instagram. So if you check my Instagram profile, I have posted some of like my experience with guys कि उन्होंने मेरे को अपना like pics भेजा बिना मेरी consent के, या उन्होंने मुझे ऐसे बोला. तो she said कि ऐसे post नहीं करना चाहिए. मैंने कहा why? तो she said कि why do you want to post? कर दिया ना तूने जो बोलना था उसको, post मत कर. I said my father calls me activist. ठीक है, so I want to tell people, I want to aware men and women how to react and what not to do, कैसे नहीं करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे भी, इवन अभी एक राहुल है, he is my school junior, अभी वो मेरे से सीख रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बड़ा हुआ तो उसको अकल होगी ना. तो I said कि मैं ये करना बंद कर दूंगी, आप स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नॉर्मलाइज करवा दो. तो शी वाज लाइक कि नहीं पढ़ाया जाता है ऐसे, क्या कर सकते हैं हम, सोसाइटी ऐसी है वैसी है. तो देन ऐसे कि ठीक है, अब फिर मेरे को तो करने दो, वो सोसाइटी ऐसी है, मैं कर रही हूँ ना, मैं बहुत बच्चों को अवेयर कर रही हूँ. शी सेड कि अगर हम कपड़ों का बोले, जैसे तू कपड़ों का बोलती है, तो टीवी पे भी बोला जाता है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं. मैंने कहा कौन से एरिया में रह रहे हो आप, पहले मुझे ये बताओ कहाँ रह रहे हो. तो शी सेड कि मैं जहाँ पे भी रह रही हूँ, पर ये गलत है, हर जगह गलत होता है. मैंने कहा I go to Delhi, मेरा गर्ल्स कॉलेज है, I go to Delhi in suit और jeans, but मेरी आसपास सारी लड़कियां शॉर्ट्स में होती हैं, या सूट में होती हैं, या बुरखा में होती हैं, because I'm like माता सिंधी कॉलेज में like हर टाइप की लड़कियां देखी हैं. And I said कि अगर मैं उनको जाके मैं जीन्स उसको शॉर्ट्स वाली को बोलूँ कि तू शॉर्ट्स मत पहन, तू आवारा लग रही है, और फिर मैं बुरखा वाली या हिजाब वाली को जाके बोलूँ कि तुझे ऑपरेशन हो रहा है क्या तेरा, तू फाइट क्यों नहीं कर रही है हिजाब पहन रही है, तो यू आर बीइंग ऑपरेस्ड. मैं क्यों बोलूँ, मे भी उनकी अपनी मर्जी है, मैं भी तो सूट. अगर मुझे कोई आके बोले कि सूट क्यों पहन रही है, तो सूट पहन. आई हैव बीन टू सो मेनी पार्टीज इन सूट बिकॉज आई फील कंफर्टेबल. मुझे पसंद है भाई सूट पहनना, तो मैं जा रही हूँ. मेरे को कोई आके बोले कि तू यहाँ पे भी सूट पहन गई, तो आई विल फील ना कि भाई मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी पहन के जहाँ मर्जी जाऊँ. तो शी सेड कि ठीक है, सुन लेती हूँ मैं तेरी बातें. एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि कहाँ से सीखा है ये सब, कब से सीखा है ये सब, तुझे किसने बताई ये बातें.
एंड तेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया है, एंड लाइक दिस रियली हैपेंड विद मी कि तेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया है. तो डज योर मदर नो दिस कि यू आर डूइंग दिस? मैंने कहा हाँ, उनके सामने बोलती हूँ मैं सबको जो बोलती हूँ, अभी भी सामने बैठी हैं. तो फिर उसकी बाद शी सेड कि Please हर say बंदे my का hi to your mom. या तो शी सेड कि हर एक बंदे का अपना नेचर होता है, हम जज नहीं कर सकते. तो वो कहीं ना कहीं ये बात कह रही थी कि अगर कोई लड़की एडजस्ट कर रही है तो इट्स ओके, उसके पति का नेचर ऐसा होगा. देन शी गेव एग्जांपल फ्रॉम अ फैमिली कि उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया एंड शी कॉल्स अ लाइक डॉटर इन लॉ लाडो. शी सेड What? पाल लाडो, लाइक दैट. Okay. Yeah, ठीक है, yeah. तो Nana is देश मेरी लाडो. या तो शी Yeah, I सेड know that. कि अभी पाल का नेचर ऐसा है एंड लाडो का नेचर ऐसा है. लाडो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि पाल का नेचर ऐसा है. मैंने कहा आपने कभी पाल से पूछा है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा कि लाडो का नेचर ऐसा है या नहीं है? ये बोथ साइड है या फिर एक साइड से ही? अगर एक साइड से है तो भैया आप अपनी बहू को अप्रेस कर रहे हो. फिर अगर दोनों साइड से है तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं. एंड शी वाज लाइक कि मेरे को पता नहीं आ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं ये वो. मैंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को आना ही नहीं है समझ. आई जस्ट से कि ओके मेरा दिमाग खराब है, आई एम ओके विद इट. आई हैव मेंटल इलनेस, मेरा दिमाग. No. It's not a mental illness. Okay, it's fine. When people tell me that they don't understand me, I tell them, you know what? It's fine because most people don't even understand themselves. Yeah. So you are just being yourself. Yeah. So no, she said कि you have some mental illness. So I said Yeah. okay, I'm fine with it. At least मैं दूसरों को जाके बता नहीं रही हूँ, स्पेशली कॉल करके नहीं बता रही हूँ कि तुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So मेरे साथ भी हुआ, like it's not just for first time, but yeah, ये मेरा सबसे I cried because she is my relative and I know कि कहीं ना कहीं if I get married अभी अगर मैं चाहूँ तो, और कहीं फ्यूचर में जाकर किसी पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट फाइन एंड आई स्टार्ट लाइक स्पीकिंग अगेंस्ट इट, और मैं उससे बोल दूँ कि मुझे छोड़ना है तेरे को, देन देयर विल बी पीपल इन रियल कि मेरे साथ भी वैसे ही होगा जो अभी दीदी के साथ हुआ कि लोग आएंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि तू एडजस्ट कर ले, जो तो मैं नहीं करने वाली, बट स्टिल कहेंगे तो ना. दैट विल हैपन टू मी एंड इट हर्ट मी सो मच कि आई स्टार्टेड क्राइंग कि यार अभी तो चलो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे हूँ अपने पापा के साथ नहीं, मम्मा के साथ हूँ. यहाँ पे लड़ाई होती है मम्मा से, पापा से बहस होगी, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा 2 दिन में. बट कहीं ना कहीं इन फ्यूचर किसी पॉइंट पे लोग जज करेंगे. अभी से करना स्टार्ट कर दिया तो फ्यूचर में तो आई डोंट नो कि क्या होगा. अभी तो आई एम जस्ट डूइंग इट ऑनलाइन, ठीक है. तो अभी आई एम जस्ट ग्रोइंग. अभी आई डोंट नो कि आई विल आई मीन उस पॉइंट तक पहुंचूंगी जहाँ तक सोचा है या नहीं सोचा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. और अगर मैं ओपनली टीवी पे कुछ बोल रही हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि हाँ इसने क्या बोल दिया. हाँ अभी तो मैं अपने सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ. देन आई ब्लॉग्ड ऑल ऑफ देम, पूरी फैमिली को जो रिलेटिव्स थे कि दूर रहो भाई, मेरे को नहीं जानना तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं, तुम क्या सोचते हो. शी सेड पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू. तो मैं इनका कुछ अच्छा सिखा रही हूँ तो जज कर रहे हैं. तो शी वाज ऑल कूल. ऐसा नहीं था उन्होंने सेक्स वर्ड यूज नहीं किया या उन्होंने ऐसा वर्ड यूज नहीं, उन्होंने सारे वर्ड यूज करे, ठीक है. बट शी वाज लाइक कि नो यू कांट डू दिस. शी वाज टोटली नॉर्मलाइजिंग कि वुमेन ऑप्रेस हो रही है तो चलेगा. सो दैट वाज सो लाइक so bad for me, but it's okay. I'm like 2 दिन लगे मैं सोचती रही कि हाँ है पुनी तेरे साथ भी हुआ ये सब, अभी just this happened to you, लोगों ने आके तुझे बताया. Otherwise I don't like give chance to people कि मेरे को आके बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. If I fail I will learn कि okay चलो मैंने ये किया, मेरे से गलती हो गई, I will like do better. I've made so many mistakes. So here we've got one question, right? मैंने बहुत देर से पिन कर रखा है. I hope Kashish is still there in the conversation. So the question is that what is intersectional feminism? How is it different from feminism?
Yeah. So intersectional feminism, मेरा पहले बायो में intersectional feminism ही था, ये angry feminist अभी थोड़े दिन पहले ही है, ठीक है. तो intersectional feminism is there are people who are being oppressed because of their race, their caste. Feminism सिर्फ लड़कियां इन्वॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ they are people, LGBT community है. I'm a bisexual, तो मैं दोनों तरफ से like अगर मेरे को कोई आके बोले तो मेरे को जज करना तो बहुत आसान है, ठीक है. तो इंटरसेक्शनल में आज सब तरह के लोग आ जाएंगे. फेमिनिस्ट कोई लोग बोलते हैं कि आई स्पीक अगेंस्ट कास्टिज्म, ठीक है. I'm a दलित feminist और I'm LGBT, I speak against LGBT. और कुछ लोग होते हैं कि अभी if we talk about upper caste people, they too call themselves feminists, but on other hand they support like casteism, ठीक है. तो वो एक तरह से कि वो एक मतलब एक जो प्रॉब्लम है उसको दिखा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वुमेन ऑपरेशन प्रॉब्लम है, बट वो एक तरफ कास्टिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर सपोर्टिंग कि नहीं भाई हम ब्राह्मण हैं एंड वी आर बेटर और बाकी सब ऐसे ही हैं. सो वो इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट में सब कास्ट वगैरह कास्टिज्म वगैरह सब चीज़ों के अगेंस्ट आ जाता है कि वी विल स्पीक अगेंस्ट एवरीथिंग, कास्टिज्म, ऑपरेशन अगेंस्ट मेन और वुमेन और LGBT कम्युनिटी और या स्वर्ण फेमिनिज्म. Yes, Sivanshu, that's what it's called Swarna feminism. So that's what intersectional feminism means कि आप हर एक बंदे को involve कर रहे हो, हर एक चीज को involve कर रहे हो. Right. So Rizki Rathore, it is different. Like intersectional feminism और feminism में फर्क है. I've seen so many feminists जो caste system को support करते हैं. They will write हिंदू एंड फेमिनिस्ट, प्राउड ब्राह्मण एंड फेमिनिस्ट. उनकी एक प्रोफाइल के ऊपर लिखा होता है प्राउड ब्राह्मण है, नीचे लिखा होता है उन्होंने फेमिनिस्ट. सो दैट्स रॉन्ग. यू कांट बी लाइक यू कांट सपोर्ट कास्टिज्म एंड कॉल योरसेल्फ अ फेमिनिस्ट. okay, so I think it was a very great conversation with Harpunit. And सबसे पहले तो मतलब I would like to personally thank you, क्योंकि मुझे खुद को क्या कहते हैं काफी सारे डाउट्स थे फेमिनिज्म को लेके. एंड आई होप कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उन लोगों को भी काफी क्लैरिटी मिली होगी that feminism is not about oppressing the other anyone, like you can't oppress. anyone. Feminism is about कि जो oppress हो रहा है उसको support करो और उसको वहाँ से liberty दिलवाओ, उसको oppression खत्म करो उसका. And even men are being affected by patriarchy. Like you can see कि जो men होते हैं they have financial burden जो वो खुद लेते हैं, वो उनको खुद लेना पसंद है. मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, ठीक है. फिर ये नहीं करना, वैसे नहीं रहना, स्टीरियोटाइप्स. तो मेन भी बहुत अफेक्ट होते हैं लाइक पैट्रियार्की की वजह से, बट दे डोंट नो कि ऐसा हो रहा है. Okay, so Harpunit, I don't know if you're aware about this or not, but Instagram, generally gives us a limit of an hour almost. I know. So हम लोगों का ऑलरेडी टाइम जो है वो मतलब गेटिंग टू अ पॉइंट कि वो अपने आप बंद हो जाएगा. तो इससे बेटर है कि हम लोग उसको खुद फॉर्मली एंड करें. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, कशिश एंड रिस्की राठौर एंड बाकी लोग भी जिनके मन में भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो लोग प्लीज फील फ्री टू पुट दोज मैसेजेस टू अस in our DM box. We will convey it to Harpunit, or you can directly contact Harpunit. I hope she'll be comfortable with answering these questions. जिसके थ्रू आप लोगों को so you can get to know about it. You can even check my profile. ज़्यादा सब कुछ clear हो जाएगा. So it's a very good thought that Harpunit has shared out कि आप उनकी प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हो. उससे भी आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी. इसके अलावा Harpunit, I would like to invite you today officially through the page of Ek August to please be a part of our Ek August community. Okay, this is a new initiative that we have recently started. I don't know if you are there on Telegram. Okay, so over Telegram
This is a small community that we have created with all the audience right now over here, so that we can put in our comments and views and discuss such matters which are not being discussed, right? अगर आप भी हमारा चैनल जाके अगर if you guys go up to YouTube and check out our documentaries, let it be about the third gender, let it be about an Indian Hindu, an Indian Muslim, or any other topic that we've made up. So these are the topics that are not being discussed, right? And I believe कि मतलब very honestly I'm telling you this thing, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा that I'm actually sitting with Delhi NCRite, and someone is telling me कि अच्छा यार I stay in in the north, और मुझे कोई बता रहा है कि फरीदाबाद की साइड में there is a child marriage that is happening, right? So this is what the community is all about. Post this, I'll be I'll try to put up the link of our community in our bio, so you can join the community. And I'll be sending it to you, Harpunit. I'll be sending it to you personally. I would love All to. the other audience members, we would love to have you in the community and discuss this topic, even more openly. I believe that will be a much better platform, and it will give you complete open space. इसके बाद मैं इसको जो टॉपिक को एंड करता हूँ. I ended with our ongoing series that is called Ek August Stories. उसके लिए भी Harpunit, I would like to invite you and all the audience members who are right now with us. Have you by any chance, have you seen our Ek August Stories? Yeah, I check your profile. I've seen that. Oh. Like, I follow you guys already. Oh, that's very, very sweet of you. Thanks a lot for following us, and it is all because of your appreciation and your love, all the people who are watching right now, that we are trying to just build up a little bit of difference in the society through the content and our page. So Ek August Stories is basically all about human stories. So what I believe and our team personally believes is that human emotions have not been expressed in any writing form, and it can never be expressed to its fullest, right? जैसे कि आज हरपुनीत आपने मुझे बताया अपने बारे में या उन लोगों के बारे में जो कि इन चीजों से गुजर रहे हैं, I don't think it has ever been expressed. Okay, it was not expressed to me, at least. That's what I can say. So this is what Ek August Stories is all about, wherein anything that you are connected with, that you feel like you want to write about it. It can be about anything. It can be about your sexuality, it can be about feminism, it can be about your first love, it can be about your school days, your college days, anything that you connect with. It can be about a watch. Okay, let me tell you a little bit about this watch. This is a watch that I actually won in a lottery, and I just I really adore this watch. I've been wearing it for more than 10 years, and I'll continue wearing it. I'll be writing a story on it, but someday. Yeah. Okay. It can be about anything that you feel connected with. So that's what Ek August Stories is all about. We would love to have your story in it. First of all, Harpunit, if you can please share it with us in the DM, and the other people who are there, we would love to have your stories. And also, please, I'll be putting up this IGTV on our page. Please do let us know in the comment section what is it that you feel about this Instagram live, and should we do more such sessions in order to spread the awareness about such things and such People are topics. asking about your page and how can they send their work to you? I think that's on the top of your mobile phone or whatever device you're using. On the left side, you must be seeing that two profiles are being mentioned over there. One of them would be Harpunit's and one of them is ours. So ours is Ek August and Harpunit is Harpunit, right? Yeah. So yeah, Kashish, of course you can surely share your work with us, and you can write your theories about it. You can write your blogs with us, and even Harpunit, if you like to write, like you were telling about your whole incident, and you want to write and explain it in a very bigger manner, we've got this amazing platform that's called Ek August Blogs. So you can check out our website also, wherein you get the freedom to write whatever you wish to write, and what is your point of view towards anything, right? So it was lovely to, it was beautiful to have a lady like you to be with us. Thanks a lot for joining in. This is Ek August, it's your story. I'll be ending this live now. Bye.
एक आगाज, it's your story.